Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor, and we are here again on this platform to study this book Moments. Moments ये क्लास 9th की बुक है और आज हम इसका चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 3 कवर करेंगे. We have already covered 2 parts before. If you haven't visited yet, go to the playlist and must watch those 2 videos. Without watching those 2 videos, you are not able to understand this third part. Okay, so let's start it. This is a story of a small child who was there, who goes in a fair with his parents. He wants many things. He is demanding many things. He wants to buy sweets. He likes burfi. He want to ask for it. He want garlands. He want many things. But finally, he knew within that his parent will not agree to buy those things for him. And at last, when he saw that particular swing, that is giant wheel or roundabout, he was unable to stop his feeling, and he kept a bold request that he wants to be there on that particular swing, right? But as he turned behind, because no one replied to his request, not his father, not his mother, nobody replied to his request. So he turned back to find out that why didn't they reply. And what he saw that his parents was not there. He was searching for them. He was crying. He was very upset. He was very panicked, and he was not able to find them anyhow. So let's move on to the further portion. Yes, we have already studied that bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seems to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He was in search of his parents, so he was watching the green field in front of him. He saw that there are some people standing over there. They were laughing because of no reason. Okay, unnecessarily laughing. So now move on to the next para. He ran quickly again, this time to a shrine to which a people seems to be crowded. Sorry, this time to the people seems to be crowding. So he was searching his parents, right? तो अभी क्या करता है वो बच्चा? he ran quickly again, फिर से दौड़ता है. This time to a shrine. This time he ran towards a shrine. What is shrine? Shrine means temple. Okay, right there in your book only, so that it will be easy to understand the chapter for, in coming future also. Okay, so now this time he ran towards a shrine, that is temple, to which people seem to be crowding. At that shrine, at that temple, there was a crowd over there. बहुत भीड़ है उधर, ठीक है? बहुत सारे लोग भीड़ लगाए जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? Every little inch of a space here was congested with men. So every little place over there, जो मंदिर है, उस मंदिर के पास हर छोटी से छोटी जगह पर भी बहुत सारे लोग हैं. तो कंजस्टेड मतलब क्या होता है, आपको पता होगा शायद. कंजस्टेड का मतलब है ना, बहुत कंजस्टेड है, जगह नहीं है. कंजस्टेड का मतलब भी होता है क्राउडेड. तो आप वहीं पर लिख लीजिए, कंजस्टेड मतलब crowded. Okay, yes. But he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. तो वो तो छोटा है बच्चा, तो अभी तो वो इतनी भीड़ में से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? तो वो क्या करता है? But he ran towards the people's legs, his little sob lingering mother and father. वो मम्मा पापा बोलते हुए लोगों के पैरों के बीच में से निकल जा रहा है, क्योंकि उतना छोटा है कि वो जगह नहीं बना पा रहा, तो लोगों के पैरों के बीच में जो जगह है वहीं से निकल के आगे भाग रहा है. ऐसा करते हैं ना छोटे बच्चे भागते हुए. तो near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick men.
तो वो एंट्रेंस की तरफ, जो मंदिर का एक एंटर करने का गेट है, ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स दैट। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वो क्या देखता है, वो देखता है कि वहां पर जो क्राउड है ना, वो क्राउड बहुत ज्यादा और थिक होता जा रहा है, और ज्यादा भीड़ होती जा रही है आगे, ठीक है। मेन जोसल ईच अदर, जोसल मतलब होता है धक्का मुक्की करना। जनरली भीड़ में लोग ऐसा करते हैं ना, फिर कहते हैं धक्का मत दो, धक्का मत दो। तो आप उसको लिख लीजिए हिंदी में ही, धक्का देना या धक्का मुक्की करना, ठीक है। तो जोसल मतलब होता है धक्का मुक्की करना, जोसल ईच अदर। तो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड hefty shoulders and hefty shoulders। तो वहां पर इतने भारी भरकम लोग हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग, जो कि जिनकी आंखें जो है, देयर आईज आर फ्लैशिंग, एकदम चमकती है ऐसी आंखें, जैसे लग रहा है खून खून लटपट है उनकी आंखों में, जैसे एकदम गुस्सैल आंखें, मर्डरस आईज है इनकी, जैसे लगता है मर्डर वर्डर कर देंगे किसी का, है ना, ऐसी आंखें उनकी। और hefty, hefty मतलब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है hefty। hefty का मतलब क्या होता है? hefty का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ओके। तो हेफ्टी, उनकी जो शोल्डर्स हैं, उनके जो कंधे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट मी शो यू दिस वर्ड, यस, दिस इज हेफ्टी। तो हेफ्टी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, अच्छे खासे भारी भरकम कंधों वाले वो लोग हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू द थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट। तो ये जो बच्चा है, द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, ये जो है स्ट्रगल करता रहा कि वो जगह बना ले बाहर आगे बढ़ने के लिए। टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट्स, उनके पैरों के बीच में से जगह बना के आगे निकल जाने की बहुत कोशिश करता रहा वो बच्चा। बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मोमेंट्स। तो क्योंकि लोग वहां पर दे आर नॉट मूविंग प्रॉपरली, धक्का मुक्की कर रहे हैं वहां पर लोग, और जो वर जोसलिंग ईच अदर, सो उनका जो एक क्रूअल मोमेंट है ना धक्का मुक्की करने वाला, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना ब्रूटल, ब्रूटल मतलब क्या होता है? क्रूअल। यहाँ पर लिख देती हूँ। तो उनका जो एक क्रूअल मोमेंट है धक्का मुक्की करने वाला, उसी के बीच में से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ही वॉज नॉक्ड, वो गिर पड़ता है धक्का खा के, ही वॉज नॉक्ड डाउन। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है? ट्रैम्पल का मतलब होता है क्रश्ड, क्रश हो जाना, जैसे ना कुचल जाना, जिसको ट्रैम्पल को कहते हैं कुचल जाना, क्रश्ड हो जाना। तो ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, लोगों के पैरों के नीचे वो कुचल गया होता। Had he not shrieked at his highest pitch of the voice, father and mother. Had he not shrieked, shrieked मतलब होता है चीखना। हमने आपको पहले भी बताया था ना, I have told you this word previously in the previous part. shrieked मतलब क्या होता है? चिल्लाना। तो अगर वो चिल्लाया ना होता अपनी पूरी आवाज से, पूरी ताकत से, वो मम्मी पापा करके चिल्लाया ना होता, तो वो लोगों के पैरों के नीचे कुचल गया होता। A man in the surging crowd heard his cry. Surging मतलब होता है उमड़ती हुई भीड़। सर्जिंग क्राउड मतलब उमड़ती हुई, इतनी भयंकर तरीके से उमड़ती हुई जो भीड़ है, उस भीड़ की अगर हम बात करें, तो उस भीड़ में एक व्यक्ति ने इस बच्चे की पुकार, उस बच्चे का क्राई, उस बच्चे का रोना सुन लिया है। And stooping with a great difficulty lifted him up in his arms. Stooping का मतलब क्या होता है? Right over there, stooping का मतलब होता है to bend, झुकना, ठीक है। stooping का मतलब क्या होता है? to bend। यहाँ लिख दूं क्या? to bend। तो वो अगर एक व्यक्ति ने उसकी आवाज ना सुनी होती और झुककर उसको गोद में ना उठा लिया होता, तो वो उस भीड़ के बीच में कुचल के मारा गया होता, ठीक है। तो द मैन हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से नीचे झुकते हैं वो व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, और ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, तो अपने अपने हाथों में, अपने गोद में उस बच्चे को उठा लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये व्यक्ति है, आपको दिख रहे होंगे, यही है वो अच्छे व्यक्ति, और ये बच्चा है जो रो रहा है, रो के आफत कर रहा है, क्योंकि खो गया है ना। अभी तक तो उसको खिलौने विलौने चाहिए थे, अब खो गया है, तो समझ में आ रहा है कि मम्मी पापा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैन हर्ड, द मैन, हाँ यहीं पे आते हैं आगे, चलो। हाउ डिड यू गेट देयर? अब जो वो व्यक्ति है, उन्होंने उसको उठाया और उससे क्या पूछा? हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए?
Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked at his steered clear of the mass. Steered clear of his mass. But वो व्यक्ति सवाल पूछता जा रहा है और steered मतलब to made a way, जगह बनाता जा रहा है और जगह बना रहा है steered clear of the mass, उस भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ना. Steered मतलब to make a way, to make a way. तो वो जो व्यक्ति है उससे सवाल पूछ रहा है कि तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे, किसके बच्चे हो तुम, किसकी बेबी हो, ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछते हुए भीड़ से बाहर निकल रहा है. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. ऐसा होता है ना, कोई प्यार से बोल दे अगर आप दुखी है तो और रोना आता है, और रोना आता है. तो यहाँ पर जो बच्चा ऐसे दुखी, तभी वो प्यार से पूछते कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें किसके बच्चे हो तुम, सारे सवाल पूछते हैं. तो वो और बिटरली ही स्टार्ट क्राइंग मोर बिटरली, बहुत तेजी रोने लगता है, इतना जोर से रोने लगता है वो, और बस रो के कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए कैसे भी. The man tried to soothe him. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? So what he do? The man tried to soothe him. Soothe मतलब शांत करने की कोशिश करना. Soothe का मतलब होता है क्वाइटन करना किसी को, है ना. सूद का मतलब होता है टू क्वाइटन, मतलब किसी को शांत कराना. बच्चा रो रहा है ना, उसको चुप कराने की बात हो रही है. द मैन ट्राई टू सूदन हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. उसको लेके जाता है उसी झूले पर जिस झूले की बात वो बच्चा कर रहा था, राउंड अबाउट द जाइंट व्हील. उस पर लेके जाता है और पूछता है विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स. उससे पूछता है क्या तुम जाइंट व्हील पे बैठोगे, क्या तुम हॉर्स पे बैठोगे, ये सब चीजों से पूछता है. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचेस द रिंग. The child's throat tore into 1,000 shrills, sobs, and he only shouted, "I want my mother and father." बच्चा और तेज से रोने लगता है और कहता है कि नहीं, I want my mother and father only. उसको अभी राउंड अबाउट ही चाहिए था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब उसे राउंड अबाउट नहीं चाहिए. वो कहता है कि I want my mother and father back. Let's move on to the next page. The man headed towards the place where Snake Charmer still played on the flute on the swaying cobra. So the man is moving forward with that little boy, and the man reached to the place where the snake charmer is still playing the flute. कहाँ पहुँच गया ये आदमी बच्चे के साथ? उस जगह पर जहाँ पर वो सपेरा अपने बीन बजा के अपने स्नेक को नचा रहा है, ठीक है. और स्विंग कोबरा, स्विंग का मतलब क्या होता है? स्विंग का मतलब होता है स्विंग मतलब झूलना, झूलता हुआ, मस्त मगन झूलता हुआ कोबरा है वो, है ना. तो स्विंग लिख सकते हैं आप उसका मतलब स्विंग. तो स्विंग कोबरा के पास पहुंचता है. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, रिक्वेस्ट करता है बच्चे से, कहता है देखो सुनो कितनी सुंदर म्यूजिक है, सुनो इस म्यूजिक को. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स. अब चाइल्ड क्या कर रहा है, उसको वो नहीं सुनना, उसको उसके मम्मी पापा ही चाहिए, तो वो अपने कान में उंगली डाल के कान बंद कर लेता है, कहता नहीं सुनना मुझे, ठीक है. एंड शाउटेड हिज डबल पिच ट्रेन, आई वांट माय मदर फादर, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. तो कान में उंगली डाल लेता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, thinking the bright color of the balloon would distract the child's attention. ओके, तो अभी क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है ये कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा उस बलून वाले के पास जिसको देखकर ये बच्चा खुश हो रहा था ना, वहाँ पहुंचा. और वो क्या सोचता है, ये व्यक्ति ये सोचता है कि शायद उस बलून्स को देखकर ये व्यक्ति बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और रोना बंद कर देगा, ठीक है. यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, आपकी बुक में देखना. तो यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. तो वो बच्चे को कहाँ ले गया, बलून वाले के पास ले गया, जिससे कि बच्चा जो है अपना बच्चे का ध्यान भटके और वो रोए ना, चुप हो जाए. वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बलून. तो क्या पूछता है ये व्यक्ति उससे क्या पूछता है बच्चे से, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बलून चाहिए क्या. ही परसुएवली आस्क्ड. परसुएवली नहीं दिख रहा होगा, आपकी बुक में देखना. परसुएवली मतलब होता है टू फ्लैटर, मतलब मस्का लगा दे ना, मनाना, मस्का लगाना, मनाना कि बच्चा मान जाए. तो परसुएवली आस्क्ड, तुम्हें चाहिए क्या रेनबो कलर का बलून. द चाइल्ड टर्न हिज ईयर्स एंड द फ्लाइंग आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स जस्ट सॉफ्ड. अब बच्चा क्या करता है, अपनी आंखें, जहाँ थोड़ी देर पहले उसकी आंखें वहीं अटकी हुई थी, अब अपनी आंखें वहां से हटा लेता है
और जो है सुबह सुबह के रोने लगता है। सॉब यानी सुबह सुबह के रोना। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वॉट डू ही वॉन्ट? ही वॉन्ट हिज मदर एंड ही वॉन्ट हिज फादर, नथिंग एल्स। उसको और कुछ भी नहीं चाहिए अब, ठीक है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब जो मैन है वो कोशिश कर रहा है अभी भी कि बच्चा खुश हो जाए। Bore him to the gate with the flowers, with the flower seller said। अब उसको कहाँ ले गया? उसको ले गया उस जगह पर जहाँ पर वो फूल वाला बैठा हुआ था, ठीक है। Look, can you smell those nice flowers? और क्या कहता है उस बच्चे से? उसको भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है लुक, क्या तुम्हें खुशबू आ रही है उन प्यारे प्यारे फ्लावर्स की? Would you like a garland to put around your neck? क्या तुम्हें एक माला नहीं चाहिए जिसको तुम अपने गले में पहन सको? अभी थोड़ी देर पहले वो यही चाहता था कि उसको माला उसके मम्मी पापा दिला दे, लेकिन अब वो व्यक्ति पूछ रहा है तो बच्चा क्या रिएक्ट करेगा? देखो बच्चा क्या कह रहा है। बच्चा कह रहा है द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड द सॉप। अब वो बच्चा क्या करता है, अपनी कहता पूछता है ना कि तुमको स्मेल नहीं आ रही, तो वो अपनी नाक ही हटा देता है कि मुझे सूंघना ही नहीं है, मुझे स्मेल लेनी नहीं है उसकी, और है ना, बास्केट से इतना दूर कर लेता है अपना चेहरा, अपनी नाक को, और सुबह के रोने लगता है। और क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ही वॉन्ट नथिंग, ही वॉन्ट हिज father and mother. Thinking to the humor his disconsolate charge by a gift of sweets। तो अब वो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये बच्चा इतना डिसकंसोलेट है। डिसकंसोलेट का मतलब होता है अनहैप्पी, इतना ज्यादा अनहैप्पी है कि मान भी नहीं रहा है, ठीक है। तो डिसकंसोलेट चार्ज कि वो इतना बच्चा इतना ज्यादा मुश्किल हो गया उसको बनाना, ये मानने को तैयार नहीं है। तो शायद ये बच्चा शायद मिठाइयाँ खा के मान जाए, तो गिफ्ट ऑफ स्वीट देना चाहता है उसको। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब मैन उसको कहाँ लेके जाता है? उस मिठाई की दुकान पर, काउंटर पर ले जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? ही आस्क्ड। क्या पूछता है कि बच्चे तुमको कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सी तुम मिठाई खाओगे? चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। बच्चा अपना चेहरा वहां से हटा लेता है, अपोजिट साइड कर लेता है, और सुबह सुबह के रोता है, कहता है आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए खाली। अभी यही बच्चा को यही सब चीजें चाहिए थी, है ना। अब इससे कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसे जो है सिर्फ क्या चाहिए? उसे चाहिए कि उसके पेरेंट्स की इज्जत मिल जाए, और सारी चीजें उसके लिए बेकार हैं। So this is the story. I hope you must have understood the story. So you have to learn the author's name. This is a very important story. You might been asked in various exams in future, in competitive exams too, right? So the book The Lost Child is written by Mulk Raj Anand. So you have to learn the author's name. And I'm thinking that we will not go for the question and answers right now. Let me explain all the chapters first, and when we will meet in the school, we will go for the question and answers. And if it will be difficult for the due to current situation to meet in the school, then I will make you write question and answer by this mode only. Okay. So right now we are not going for question and answers. So this is a story. Learn it. And try the question and answers by yourself. Okay. When we will meet, I'll make you write answers. And class now you are in class 9th. You are not in class 8th. So whatever you will learn, the questions will not be asked from the same. Okay. It can be asked from the chapter in between also. So understanding the chapter and understanding it properly is rather more important than anything else, right? Okay. So I think that your other ma'am will make you write the question and answer, and if she won't, I'll make you do the same. Okay. Thank you so much. Stay blessed, stay connected, and most important, stay connected, and God bless you. Thank you so much.